Welcome to Get Savvy with Shruti, powered by MB Sugars, brought to you by Savvy School of Design and Technology, our venue partner SSK Club. And today we welcome my dear friend Dr. Namita Kohak, who is not only a motivational speaker, she's an educational entrepreneur, she's a national champion and a cancer survivor. With a big round of applause, let's welcome Ms. Namita Kohak. Hello. Hi Namita, how's you? I'm absolutely doing great, making every day count. And I'm so glad to be with you here, my dear friend, after so many ages and actually in your first season. Thank you so much for having me here. Thank you. Thank you. It's a pleasure to have you here. Namita, your journey as an educational entrepreneur has been very, very different. I mean, your journey in every aspect has been different, and we'll be definitely covering every point today. We need to know, our audience really need to connect to you to understand how much a lady can do, what a superpower lady is, what a supermom is, what a cancer survivor is, and how different horizons one can have to look towards a cancer survivor also. I've seen people who just on the name of cancer survivor don't do vigorous exercises or they think that they cannot do, they shouldn't do. Mm-hmm. So there are so many aspects, so many different things to learn from you, so many things that you indirectly or directly teach through your lifestyle. Mm-hmm. And today we'll be unfolding all those journeys with a little of knowledge, with lots of fun and lots of time together. Okay, so you are the MD of Young Minds. Would you share a little bit about your Young Minds concept, organization with our audience today? Sure. Thank you once again. And we start with the first question. And before we start, I would just like to say that I believe in one thing, that जिंदगी सवारने को तो जिंदगी पड़ी है, चलो वो लम्हा सवार लेते हैं जहाँ जिंदगी खड़ी है. क्या बात है. Well, this segment has touched my heart because the question of young minds is something which is just like delivering a second child. You know, I'm a mother of a child, and this is like delivering another it's your second baby. Yes. And this all started close to 9.5 years now. And the journey was absolutely unplanned. Because I come, being born in a simple middle-class family. We have been taught in a Maharashtrian family that if you are if you're working, so you have a particular 8-hour business. And if you do a business, it's like 24 hours job. So for that context, we Maharashtrian people put ourselves in a category that वो महीने का मीटर चल रहा है, salary आ रही है, so be contented and be happy with it. But the moment a Maharashtrian family person decides to get into business, so things are absolutely not that welcoming. In my context, the journey of Young Minds started at a very different place. You know, लोग कहाँ पे company launch करते हैं, you know, बहुत बड़े-बड़े functions करते हैं, company launch होता है. But for me, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, because I was working very happily with a school in Nasik, and सब कुछ ठीक था. You know, that was the time when in my life I always say the sky was pink. You know, everything was just so perfect. You know, married in a very good family. I am having my son who was then 6 years of age, and you know, going to the school with him, coming back, and everything just set. I never knew that someday the plans will change. The God is going to have another plan for me altogether. Yeah, because होता है ना, हमको लगता है कि मैं तो पतली हूँ, मुझे क्या हो सकता है, सब कुछ रूटीन में सब कुछ चल रहा है. Things were just the way I wanted. But वो ऊपर बैठा हुआ है, हाँ, उनको पता होता है कि भाई तुम्हारा आय की जगह मेरे को पता है what I want, like what he wants. बस that's how it started. And with one day I woke up with terrible pain in my lower abdomen, जो मैं रोज बहुत दिल से करती हूँ. आपण म्हणतो ना ते गजर लावायचा, वो तो पुराना सा अपना क्लॉक रहता था, वो अलार्म क्लॉक, उसको ठपके से मारो तो बंद हो जाता था. बस यही हमको लगता है कि जो इंसान रात को अलार्म लगाएगा वही इंसान सुबह अलार्म बंद करेगा. ये कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है,
क्योंकि बहुत सारे लोगों की जर्नी मैंने देखी है कि जिन्होंने रात को अलार्म सेट किया लेकिन वो सुबह उठे ही नहीं वो अलार्म बंद करने के लिए। कितना ग्रांटेड पकड़ते हम वो ज़िंदगी को, कितना ज़्यादा। मेरा प्रेजेंटेशन है, मुझे ये करना है, मेरे बॉस ने वो जॉब दिया है, सब कुछ दिया है। एक बार कभी शांति से बैठ के आपने सोचा है कि शायद मैं कल सुबह अगर उठी ही नहीं तो क्या? तो यही दिन था मेरी ज़िंदगी का कि वो अलार्म मेरे मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल आजकल हर एक के हाथ में हो गया है। काल निर्णय, कैलेंडर, आपके बर्थडे के डेट्स जो हम याद रखते थे, फ्रेंड्स के भी कभी नहीं भूलते थे स्कूल में, वो सब जगह ले लिए। फोन बस नंबर्स तक याद रहते थे उस टाइम तो पे वो हमको, बाइक नंबर्स भी जब हम कॉलेज में थे। आप लोग बोलते हो कि मैं नहीं बोलती हूँ, आप स्मार्टफोन बोलते हो ना। टेक्निकली यू पीपल ऑल से इट्स अ स्मार्टफोन, मैं बोलती हूँ भाई डिजास्टर फोन है वो, क्योंकि उसने हमको कम स्मार्ट कर दिया। हाँ जी, आपकी मेमोरीज वैनिश हो गई उसमें। सो मेरा एक काम था जो सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये सब चीज़ें, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट 9.5 years ago, लाइक थिंग्स वर सो न्यू कि हमको लगता था कि अपडेटेड रहे, सबको कुछ ना कुछ मैसेज भेजे, सुबह सुबह बड़े बड़े थॉट्स भेजे, किसी और ने लिखे हुए कुछ है, बस कॉपी पेस्ट करा के डाल दो, अच्छा लगता है। तो ये सब जो एक ट्रेंड था, वो ट्रेंड में ब्लैकबेरी मैसेंजर, वो सब वो टाइम था, तो उसमें दीज वर द थिंग्स व्हिच हुक्ड अप टू सो मेनी पीपल अराउंड। तो बस आई वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट कि इतना ग्रांटेड पकड़ के सब चल रहा था। जब वो अलार्म का सीन हुआ मेरी ज़िंदगी में, कि जब वो अलार्म बज रहा है मेरे बाजू के साइड टेबल पे, आई जस्ट कुडंट इवन स्नूज और पुट ऑफ दैट अलार्म इन माय फ़ोन, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे पेट का दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा कि जब आँख खुली तब एज अ पेशेंट मैं कार में थी, नासिक के हॉस्पिटल में। वी वर ऑन द वे टू द हॉस्पिटल इन नासिक एंड थिंग्स वर, आई वॉज वंडरिंग कि कल तक तो एकदम ठीक थी, रात तक ठीक थी, सुबह ऐसे क्या हो गया जो एक नॉर्मल इंसान से मैं जाते जाते पेशेंट हो गई। पेशेंट होने के बाद जब हॉस्पिटल लेके गए तब उन्होंने बोला कि इनको इमरजेंसी में लेके जाओ। अब तक तो ठीक थी, यानी डॉक्टर ने कहा ये केस को इमरजेंसी में लेके जाओ। डिड यू रियलाइज इंसान के नाम कितने बदल जाते हैं? आप जब तक उठे तब तक मैं आई वॉज नमिता, जब मैं हॉस्पिटल तक जा रही थी तब पेशेंट थी, हॉस्पिटल में पहुंची तब डॉक्टर ने बोला ये केस को इमरजेंसी में लेके जाओ। डॉक्टर ने उसके बाद कहा कि इनको तुरंत मुंबई लेके जाओ, यानी बॉडी बनने से पहले मुझे मुंबई पहुंचना था। ये स्टेजेस होते हैं आपकी ज़िंदगी के। अभी तक जो इंसान हंसता खेलता सामने दिख रहा है आपके, कुछ 4-6 घंटे बाद कुछ न्यूज़ आती है, कुछ लिख देते हैं फेसबुक पे, पढ़ने आ जाता है। ये तो हमने पैंडेमिक में देखा हुआ है कि इंस्टेंटली वो इंसान जो भी नाम है उसका, उसके माँ बाप ने दिया हुआ, उसने कमाया हुआ, वो जो भी है वो बॉडी बन जाता है। बॉडीला इकडे हलवा, बॉडीला इकडून काढ़ा, बॉडी को लेके जाओ। अरे वो कुछ चंद घंटे पहले भी उसमें सांसें थी। तो ये जो सेगमेंट शुरू हुआ, देन देयर वर लॉट्स ऑफ टन्स ऑफ टेस्ट्स एंड एवरीथिंग हैपेंड। लेकिन एक एक्सपीरियंस जो मैंने बहुत क्लोजली लिया है वो एम्बुलेंस का है। पैंडेमिक में आप सब ने बहुत सायरन्स सुने होंगे, लगता भी होगा यार भाई अपने बिल्डिंग के यहाँ से गई है, कोई अपने बिल्डिंग से गया है, अपने एरिया से किसी को क्या हुआ है, क्या देयर सो मेनी स्पेकुलेशंस, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है कि किसी को पता नहीं होता है। सो व्हेन आई वाज देयर इनसाइड द एम्बुलेंस एंड माय जर्नी वाज कंटिन्यूइंग, वो सायरन तो चल रहा था, सेडेटिव्स थे इसलिए शायद थोड़ा पेन कम था, और मुंबई पहुंचे और मैंने हाथ जोड़े भगवान को। मेरे को यहाँ आईवी चल रहा था, लेकिन स्टिल माय हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग, लेकिन मैंने हाथ जोड़े भगवान को, मैंने बोला थैंक यू कि मेरे को ज़िंदा यहाँ तक तो भी पहुँचाया। और मैंने वापस एक बार हाथ जोड़े वो हर एक इंसान के लिए जिसने मेरे एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह दी थी, दैट एवरी पर्सन्स दैट काइंड ऑफ gesture has made me who I am today, because they made me reach my ambulance in time. हमको हमेशा लगता है हर लोगों को फरक क्या पडता आहे, मी नाही जागा देत, काय फरक पडतो, जाईल त्यात, मी एवढा छोटासा रस्ता आहे, मी कुठे, मी काय उडून जाऊ का, मी काय इकडे करू का? अरे आप सोचो कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट यहाँ वहाँ, थोड़ी सी उतनी सी एडजस्टमेंट में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो एक बार वापस किसी की अगर जिंदगी बच रही है तो सोचना जरूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि एम्बुलेंस में कोई यूं ही तो घूमने नहीं जाता है, तो कोई ना कोई जब सायरन बज रहा है यानी इमरजेंसी है, वो स्पीड में आ रही है, वो बीच में कहीं अटक जाती है, तो that's how you can contribute. तो of course to your viewers I would just like to say, because this is very very important,
फ़र्क क्या पड़ता है अगर मैंने जगह नहीं दी, लेकिन जब उस दिन रात को आप सोओगे ना, तो आप चैन की नींद सोओगे कि हाँ, मैंने जगह दी, मैंने मेरी तरफ से कोशिश की, बाकियों का मुझे पता नहीं. That's that happiness and contented feeling every person will I get. had done my giving back to the society. Exactly. तो वो हुआ, सब टेस्ट शुरू हुए, सर्जरी लाइंड अप हुई हॉस्पिटल में, एंड एवरीथिंग वाज लाइक हॉच पॉच. यानी जब तक दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे कुछ किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन देना था जिसके लिए मैं बहुत कुछ काम कर रही थी बहुत टाइम से, एंड आई रियलाइज्ड कि ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ बदल गया है. प्रायोरिटीज बदल गई, प्रायोरिटीज बदल गया, सब कुछ बदल गया, क्योंकि वो विशियस सर्कल होता है कि आप जहाँ से शुरू करते हो वहाँ पे ही ख़त्म होती है चीज़ें. तो मुझे कभी लगा नहीं था कि ये सब चीज़ें किसी के लाइफ में हो भी सकती है. देन थिंग्स हैपेंड, एंड उतने डेप्थ में मैं सर्जरी के वो सारी चीज़ों की डेप्थ में नहीं जाऊँगी, बट आई ऑलवेज टेल यू बिकॉज हमारा क्वेश्चन यंग माइंड से रिलेटेड है. तो ये सब कुछ चीज़ें चली, सर्जरी लाइंड अप थी, वो सर्जरी हुई, और जब सर्जरी होने के बाद में डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि एक 3 दिन में आप नासिक चले जाओगे. सो आई वाज लाइक वाओ, चलो अभी तक भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आई कैन, आई एम स्टिल गुड, कि 1 घंटे के सर्जरी के बाद मैं तो चली जाऊंगी नासिक. सो थिंग्स वर गुड. आई वाज आई वेंट हैप्पीली इनसाइड द ओटी में एंटर करते समय मैंने लाइफ एंड डेथ का ट्रेलर देखा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ना करते ना, मैं, मेरा फ़ोन, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, मेरे बर्तन, मेरा गैस, मेरा किचन, मेरे पर्दे, मेरा घर, मेरा 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 मेरी प्रॉपर्टी. बिलीव मी, ऑपरेशन थिएटर के बाहर आपको सब कुछ छोड़ के जाना होता है. आप लेके जाते हो तो सिर्फ एक विश्वास कि भगवान डॉक्टर के रूप में है और मैं वहाँ यहाँ से ज़िंदा वापस आऊँगी. आपके बदन पे इतनी सी भी एक भी पीस ऑफ ज्वेलरी नहीं होता है जिसके लिए हम बहुत जी जान लगा देते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पहनना है, मुझे ये करना है, मुझे सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ आर जस्ट लाइक दैट. ये सब चीज़ें मैंने रियलाइज़ की कि ये सब कुछ बाहर रह जाता है. फ़ोन हमारा जो 24 घंटे हाथ में रहने वाला गैजेट, जिसमें 1000 लॉक्स लगाते, व्हाट्सएप खोलने के लिए अलग लॉक, इंस्टाग्राम के लिए अलग लॉक, ये जितने लॉक्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी प्राइवेट चीज़ें कोई ना दिखे. करेक्ट? हमारे फ़ोन पे हमारी चीज़ें होती, प्राइवेट चैट्स होती, कुछ भी हो सकता है. और उसका एक विरोधाभास हम जो बोल सकते हैं वो, यानी कि वही प्राइवेट चीज़ें जो हम छुपा के रखते हैं वो फेसबुक पे डालते हैं और इंस्टाग्राम पे डालते हैं. सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें क्या होती है. तो ये जो लॉक सिस्टम है वो तो चलो ठीक है, वो फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था. जिन लोगों को दिन रात मैंने वो शायद चिड़िया, फूल, गुब्बारे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के भेजे है, देयर वाज नथिंग विच आई रियलाइज कि मुझे एक समझ में आया कि जो रिश्ता आपका दिल से होता है, जो इंसान आपको दिल से चाहता है, जिसका आप ना होने से उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, वही इंसान आपके ऑपरेशन थिएटर के बाहर होता है. बाकी ये सब जो आपके साथ रहे ना, जो मुझे इतने लाइक्स, मुझे इतने व्यूवर्स है, मुझे ये है, ये सारे कॉन्टैक्ट्स है और ये यहीं के यहीं रह जाते हैं. आप आज हो, उनके साथ सब कुछ अच्छा शेयर कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप नहीं हो, ओम शांति, रिप, ये मैसेजेस आते हैं, श्रद्धांजलि. सो एक ये चीज़ जो मैंने गांठ बांध के सीखी है, दैट इज जस्ट बीइंग क्लोज टू द वंस whom you मैटर द मोस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कमर्शियल चीज़ें में हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि ये सब चीज़ें, बट दीज थिंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. एब्सोल्युटली. ये जब हो रहा था तब मैंने रियलाइज़ किया कि सब कुछ तो छोड़ के इंसान बाहर जा रहा है. जब अंदर जा रहा है ऑपरेशन थिएटर में, बाहर तो मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, और इतने पूरे जर्नी में, यानी नासिक से निकली, हॉस्पिटल गई नासिक के, वहाँ से निकली, वापस हम मुंबई के हॉस्पिटल में गए, उधर बहुत सारी टेस्ट हुई, फिर सर्जरी के लिए मुझे ओटी में लेके जाना था. इतने सारे टाइम में मेरे हाथ में जो हमेशा मोबाइल होता था वो नहीं था, मेरे हाथ में मेरे हस्बैंड का हाथ था. तो तब रियलाइज़ होता है कि हम हमारे साथ में रहने वाले लोगों को कितना ग्रांटेड पकड़ते हैं. मदर्स डे के दिन हैप्पी मदर्स डे, बहुत सारे मदर्स डे के चीज़ें हम करते हैं. वैलेंटाइंस डे के दिन ही प्यार दिखाना है, ओह माय गुडनेस. या फ्रेंडशिप डे के दिन ही फ्रेंड्स होते नहीं, वो हमेशा होते हैं. जब आप ना चाहते हो भी आपके साथ है तो वो आपके फ्रेंड्स है. दैट्स हाउ द रिलेशनशिप शुड बी. ये सब चला, सर्जरी हुई, आई वॉज आउट, आई वॉज इन द आईसीयू से रूम में आई. एक जो ड्रग
सर्जरी के टाइम पे दिया जाता है, मेडिसिन आप बोल सकते हैं आप, दैट इज़ एनेस्थेशिया। अगर 24 तारीख को अगर हम शेड्यूल कर रहे हैं सर्जरी, तो जब मेरी आँख खुल रही है मुझे नहीं पता कि वो 24 तारीख है, 25 लोग लग चुकी है या 26 तारीख है, क्योंकि इन पेशेंट का टाइम तो वहाँ ही रुक जाता है ना, जब तक वो एनेस्थेशिया से बाहर आता है, देन दे रियलाइज ओके आजू बाजू में चीज़ें क्या हो रही है। सो थिंग्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो ये सब जो हो रहा था मेरे साथ में, मैंने आईसीयू में पहले जब आँख खुली तब देखा, तो मुझे लगा कि शायद उसी दिन 1 घंटे के बाद मेरी आँख खुली है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ग्रेजुअली आफ्टर डे थिंग्स वर लिटिल बेटर। उसके बाद जब थोड़ा ठीक ठाक होने लगी, देन आई वाज शिफ्टेड टू द रूम। जब मैं रूम में शिफ्ट हुई, दैट टाइम द डॉक्टर्स दे ब्रोक द आइस। डॉक्टर्स ने कहा कि वी नीड टू टेल यू समथिंग। मैंने बोला भाई अब क्या है, क्योंकि तब तक मुझे पता चला था कि एक बेसिक सी सर्जरी को कुछ इतने मल्टीपल आवर्स लग चुके थे। उसके बाद ना मैं 3 दिन में नासिक पहुंची थी, ना कुछ हुआ था, मैं 8 दिन में उधर ही थी। उसके बाद डॉक्टर्स बोलते कि वी नीड टू टेल यू समथिंग मोर टू इट। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई कि आप बोल रहे हो पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि कैसे होता है ना डॉक्टर्स का, वो उनको दे रियली वांट द पेशेंट टू बी हेल एंड हार्टी, टू एक्सेप्ट इवन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट थिंग्स विच आर कमिंग टू हिम और हर। जब उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपकी बायोप्सी, उधर टेबल पे ही बायोप्सी के रिपोर्ट्स हमारे हाथ में आए थे, बट यू आर नॉट इन द स्टेट टू टेक दिस काइंड ऑफ अ शॉक इवन इन द ICU और एनीथिंग। मैंने तो वो बोले जा रहे हैं और मैं उनको सिर्फ ऐसे देख रही हूँ, शॉक बिग कुछ वर्ड्स यूज कर रहे, मतलब व्हाट। तो दे सेड ओके नाउ काम डाउन, एंड दे ब्रोक द आइज एंड दे सेड कि नहीं यू हैव कैंसर एंड वी हैव जस्ट वन द 50% वॉर एंड वी आर येट टू फाइट 50%। काय मैं दिमाग में खुद मतलब हाँ डॉक्टर ठीक है ना, यानी ऐसे लगता है ना अपने को कि सब कुछ ठीक हुआ है या नहीं। ऑल राइट? Yeah, so I'm like, there were a team of doctors. So they said that this is what it is and we need to, take it further. और एक बताना चाहेंगे कि बहुत लंबा चलेगा सिलसिला, तो आप रिज़ाइन कर दो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, या फिर लंबी छुट्टी लो। उनका जो लंबी था वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लंबा था कि लंबी छुट्टी यानी कितनी लंबी छुट्टी। दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि जहाँ पे भी कोई आप जॉब कर रहे होते हैं और वहाँ से आपको कोई रेसिप्रोकेट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, तो यू रियलाइज कि आप जब तक हो तब तक वो कुर्सी आपकी है, आप नहीं हो तो कोई और आपकी जगह ले रहा है। तब मुझे रियलाइज हुआ एक चीज़ ज़िंदगी में कि मेक योर सेल्फ इररिप्लेसेबल। अगर नमिता नहीं है तो ये काम कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। सो इम्पॉर्टेंट। आपके जगह पे 10 लोग और खड़े हो जाते काम करने के लिए, सो यू आर रिप्लेसेबल। अब ऐसी कोई अलग सी चीज़ थोड़ी की है, कुछ नहीं। जो भी जगह पे आप जो भी जॉब कर रहे हो या जो भी काम आपका पोर्टफोलियो है, कोई और देख रहा है, सिंपल एज दैट। थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली। तो जब उन्होंने लंबी छुट्टी के लिए कहा और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे दे आर स्टार्टिंग विद माई फर्स्ट कीमो साइकिल, मैंने कहा कि थैंक्स। बस क्या बोल सकती हूँ मैं अभी डॉक्टर्स को कि उन्होंने उतनी एक्सटेंसिव सर्जरी से मेरी जान बचा के मुझे वहाँ तक लेके आए थे। तो मैंने उनको कहा कि फाइन, ही सेड विल सी यू टुमारो। वो जो मूवी का टाइटल है, मुझे लगता है कि वो बहुत एप्ट है मेरी वो रात के लिए, कि इस रात की सुबह नहीं। बिकॉज ऐसे लग रहा था कि वो इतनी लंबी रात है जो कट ही नहीं पा रही, कुछ हो ही नहीं रहा उसमें। और मुझे हमेशा लगता था कि वाई मी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि मुझे कैंसर हुआ। सी, आप भगवान को कब याद करते हो? जब नुकसान हो जाता है। क्योंकि जब बहुत कुछ हैप्पी ओकेजन होता है ना, तो इंसान पार्टी देता है, दैट्स हाउ थिंग्स आर। बहुत मैंने कुछ अचीव किया है, सेलिब्रेट करते हैं, मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि आप मंदिर शायद बाद में जाते हो या भगवान को बाद में हाथ जोड़ते हो, लेकिन कुछ नुकसान हो जाए ना तो आप पहले हे देवा, हे भगवान, मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ऐसे क्यों हुई। तो वो मेरे साथ जब हुआ तो मैंने तब रियलाइज किया कि अरे यार, जब ब्लेम करने की बारी आती है तो पहले भगवान को ही ब्लेम करते हैं हम। तो मैंने भगवान को बोला भाई वाई मी। देन आई रियलाइज्ड कि वो वाई मी का कोई आंसर मुझे सुबह तक कुछ मिला नहीं। आई क्राइड माई हार्ट आउट। नासिक में
पता नहीं मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा कुछ किसी को बताया नहीं था, बिकॉज वी आवरसेल्व्स weren't sure about things which were happening to us. और जब उन्होंने मुझे बोला कि we'll start with your first chemo cycle, तो अभी मैं क्या बोलूँ, थैंक्स टू बॉलीवुड, क्योंकि उन्होंने हमको इतना पढ़ा के रखा है, या बॉलीवुड या कोई भी सो कॉल्ड मूवीज जो मैंने देखी है. मुझे ऐसी भी मूवीज हो सकती है जहाँ कैंसर सर्वाइवर्स पे भाई स्टोरी वोरी पिक्चर विक्चर बनी हो जो जिंदा है आज. मैंने ऐसी नहीं देखी. मैंने जो इंटेंस मूवीज देखी है उसमें जहाँ भी अगर पेशेंट को या वो एक्टर को कैंसर हो जाता है तो वो मर जाता है. यू नो, दैट्स ऑल. कि लोगों को क्या लगता है, क्योंकि लोग जो मुझे मिलने आते भी थे उनको भी यही लगता था कि भाई अभी शायद इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है. यू नो, दिस इज व्हाट थिंग्स वर. एंड टेक्निकली स्पीकिंग, जब उन्होंने स्टार्ट किया मेरे यहाँ गले के नीचे चेस्ट के ऊपर यहाँ एक इंसिजन दिया था. इट्स कॉल्ड एज अ पोर्ट फिट करते हैं यहाँ पे. तो यहाँ से भी ड्रग्स अंदर जाता है, मेडिसिन आपका कैंसर का, कीमोथेरेपी का, और बहुत धीरे 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 सलाइन चलती है तब तक. और आपका यू नो हाथ से भी उनको मुझे कुछ सलाइन शुरू करनी थी. मेरे दोनों हाथ पे मल्टीपल टाइम्स वो सिस्टर ने एकदम ऐसे कर करके ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे इंजेक्ट हो ही नहीं पा रहा था, सलाइन आउट जा रही थी. सो उन्होंने बोला जस्ट कट इट ऑफ सिस्टर, हम थाइस से सलाइन एडमिनिस्टर करेंगे. तो मेरे यहाँ थाइस पे उन्होंने सलाइन शुरू कर दी और यहाँ से पोर्ट से चल रहा था. मेरे हस्बैंड साथ में थे. मैंने उनको बोला प्लीज़ पास ऑन माय लैपटॉप. वो बोले यार अभी तो ये आजकल ना लोग गूगल यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप कॉलेज जाते हैं, उधर कुछ कुछ पढ़ते हैं, उनको लगता है भाई हम तो डॉक्टर ही बन गए हैं, मेडिको. एक दवाई का मैं वो एक्चुअली आई वाज जस्ट चेकिंग दैट एम्प्यूल, तो मैं वो देख रही थी उसमें क्या लिखा है कैसे. तो मेरे हस्बैंड को लगा भाई कर करके क्या करेगी, कुछ गूगल कर लेगी बैठे बैठे कि ये मुझे जो मेडिसिन दिया, ये स्ट्रेंथ दिया है, ये कितने कैसा है क्या है. दिस इज़ वॉट ही थॉट, बट दैट इज़ नॉट वॉट आई थॉट. जब उन्होंने मेरा लैपटॉप मुझे दिया तब तक मैंने रिज़ाइन कर दिया था जहाँ पे मैं जॉब करती थी. जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो. क्योंकि जब तक आपके पास चीज़ें होती है, मैं करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, अरे मेरे हाथ में है, या जॉब भी चला जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा, अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो, अरे नेगेटिव कितना सोचोगे, कितना नेगेटिव सोचोगे. जो सोचोगे साला वही रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे. सो ऐसा कुछ सोचो कि होना है तो बस होके, ये तो होके रहेगा अभी बस. तो आई रियलाइज्ड की मराठी में म्हणतात ना की हे खूप इनडेप्थ आहे. मी खूप काही वाचत होती आणि त्या दिवशी मला कळालं की परिस्थिती जेव्हा परीक्षा घेते, परिस्थिती जेव्हा परीक्षा घेते तेव्हा जिद्द जन्म घेते. त्या जिद्दीने तेव्हा जन्म घेतलेला होता आणि त्या क्षणाला माझ्या पहिल्या केमोथेरपीला त्या हॉस्पिटलच्या बेडवर माझी कंपनी यंग माइंड्स एज्युकेशनल सोल्युशन्स अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लॉन्च केली. क्या बात है. हे म्हणून मी म्हटलं ना की ये एकदम अलग से लॉन्चिंग था. ये से कुछ फैंसी चीजें नहीं थी, ना फूल लगे थे, ना गुब्बारे लगे थे, ना कुछ लगा था. Because life was very fancy every time for you, so maybe the launching wasn't. Maybe the launching was this way, and God wanted it to be this way. So Young Minds का मैंने लॉन्च किया. मेरे घर वालों को लगा कि चलो इसका दिल बहल जाएगा. लगता है ना, क्योंकि इतना आपको सीवियर एक हेल्थ इशू है आपके सामने. तो अगर मेरा कुछ ध्यान कहीं बढ़ जाता है, आई एम नॉट टेक्निकली गोइंग फॉर जॉब, कहीं जाना नहीं है, घर पे बैठे बैठे ईमेल्स कर रही है, चलो इसका दिल बहल रहा है. तो ऐसे सामने वालों को लग रहा था, घर वालों को, जो क्लोज फ्रेंड्स थे उनको. मैंने बोला कोई बात नहीं, चलने दो. ये सादा ऐसे ही चलता रहा. मेरी थर्ड कीमो साइकिल सबसे दर्दनाक थी, क्योंकि तब तक थोड़ा ईगो था मुझ में. वो थर्ड कीमो साइकिल को मैं हमेशा बहुत दिल से याद रखती हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना कि बाथरूम में मैंने देखा कि लास्ट स्ट्रैंड ऑफ माई हेयर वर इन द ड्रेनेज. तो अहंकार जो ईगो है वो बह जाते हुए देखा मैंने. क्योंकि मुझे लगता है हर इंसान को, कितने भी उसके सर पे गिने चुने 4 बाल भी है ना,
वो उसके सर का ताज होता है 100%। उसको वो एक कहीं ना कहीं आपको वो वो देख के जाता है कॉन्फिडेंस की, नहीं यू लुक नाइस। जब वो फेज मेरी जिंदगी में आया तो दैट टाइम आई हैड रियलाइज्ड कि अगर आप अगर खूबसूरत हो तो वो इधर है। ये सब बनावटी, इसमें कोई नहीं है खूबसूरती। खूबसूरती इज राइट विद इन यू, इट्स इन योर हार्ट एंड इट्स इन द वे यू स्पीक, इट्स इन द वे यू ट्रीट पीपल। इट्स नॉट व्हाट यू वेयर, ज्वेलरी, क्लोथ्स, फुटवेयर, ब्रांड्स नहीं। ये सब आज है कल नहीं। किसी की जिंदगी में क्या होगा कल किसी को पता नहीं था। और सब एक के बाद एक चीज़ें हो रही थी। 6th केमो के टाइम तक आई हैड विजिटेड फ्यू रेजिडेंशियल स्कूल्स। मेरी कंपनी रेजिडेंशियल स्कूल्स का काम देखती है इंडिया में। मैंने बचपन से सुना था, कभी गई नहीं थी देहरादून। मैंने सुना था कि बहुत अच्छी अच्छी रेजिडेंशियल स्कूल्स वहाँ पे होती है। राइट। एक मराठी महिला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बॉलीवुड के सारे एक्ट्रेसेस के बच्चे पहले देहरादून में पढ़ते थे, ऐसा एक नहीं, अभी बोला जाता था। हाँ, अभी ठीक है, थोड़े कम अभी है, तो अब्रॉड ही जाते होंगे। हाँ नहीं, और बहुत रेजिडेंशियल स्कूल्स हमारे पास आ गई है। प्लेसेस अभी तो ऐसा है कि यू कैन सेट अप बेस्ट ऑफ द रेजिडेंशियल स्कूल्स एवरीवेयर। लेकिन मेरे IQ के हिसाब से मुझे पता था, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो आप लोग मास्क में अभी आए 2020 में, मैं मास्क में उसके पहले 6 साल थी। तो आई यूज्ड टू मास्क माई सेल्फ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मुझे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं मास्क पहनती थी तो सामने वाला मुझे ऐसे एक्सप्रेशंस देता था कि ओह माय गॉड, इनको पता नहीं कुछ है, दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग द स्वाइन फ्लू थिंग आल्सो। हाँ, तो लोगों को बस लगता था कि भाई इसका इनके साथ कुछ गड़बड़ है जो मुझे नहीं होना चाहिए। दैट्स हाउ आई वाज ट्रीटेड। एंड उसमें भी बहुत काफ़ी एपिसोड्स हुए हैं मेरे साथ उसमें। लेकिन कुछ गिने चुने 15 स्कूल्स को पूरा मेरा विजिट हुआ। और वो पहले ही स्लॉट में एक 15 स्कूल्स का विजिट देते समय मेरे पास 3 स्कूल्स का काम आया। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि अरे यार मुझे काम मिला है, अच्छा है, दिस इज माय न्यू कंपनी। एक तो मैं अकेली, मेरे साथ कोई भी नहीं, जस्ट अलोन आई हैड टू गो एंड टू गेट माय थिंग्स डन। क्योंकि वन मैन आर्मी, हाँ, क्योंकि पैसे थे नहीं ना। मैं अगर इतना तामझाम करके 10 लोगों को लेके जाओ, आज इतनी सारी आपके पास टीम है, I never had resources then. That was a start, basically. That was a start, and even my family was always that we will be there around, we will come with you. I said, यार कब तक साथ रहोगे, कितना साथ दोगे? कभी ना कभी तो इंसान को रियलाइज होता है कि भाई ये जर्नी तो मेरी है, मेरे को अकेले ही करनी है। So that is very important. तो वो जब मुझे रियलाइजेशन होने लगा तब I was traveling. डॉक्टर्स है, कीमोज है, टेस्ट चल रही है, लैब में ये रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट्स है, लेकिन एक अलग सी छोटी सी जिंदगी चल रही थी एज एन एंटरप्रेन्योर। जा रही थी, देख रही थी, सीख रही थी। बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि अपॉइंटमेंट होते हुए भी मेरे पहले कोई आए हुए थे, बहुत रेप्यूटेड कंसल्टेंट्स थे, तो मुझे सिक्योरिटी गेट पे बिठा के रखा देहरादून में। एंड I did not carry anything to eat and I had to take my medicines. So there was a very very senior watchman. So he said कि मैडम जी कुछ खास तो लाया नहीं मैंने, रोटी सब्जी है तो दो, आप कुछ खा लोगे? मैंने देखा कि आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ आजू बाजू तो कुछ मिलता नहीं है। सारी स्कूल जैसे वो मूवी वाले लोकेशन पे वैली में कहीं कहीं स्कूल्स होती है। सो उन्होंने मुझे कहा सिक्योरिटी ने कि आप आप आ जाइए और मेरे साथ बैठिए खाना खाने के लिए। बस उनके साथ खाना खाया, टैबलेट्स ली, एंड देन आई वेंट। एंड देन ऑफ कोर्स वो काम तो मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि दे फेल्ट दैट आई एम नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो, और माय कंपनी इज दैट केपेबल ऑफ, क्योंकि मेरे साथ कोई था ही नहीं तब तक। और ये सब श्रृंखला चली। और 6th कीमो साइकिल पे मुझे मेरे गुरु है वो मुझे मिलने आए मुंबई के हॉस्पिटल में। और श्रुति, उन्होंने मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछा कि जैसे वो एकदम हंस के मेरे पास मुझे मिलने के लिए आए। जब आपको कीमो शुरू होता है ना, तो मैं आपको सिंपल से बता सकती हूँ कि हम जब छोटे थे तो मेरे घर पे तो वो एसिड से वॉशरूम धोती थी आई, यानी कभी भी वो ये तो अभी तो नहीं मिलता एसिड, लेकिन वो अगर एक छोटा सा ढक्कन एसिड भी अगर जमीन पे डाल दे तो आई बोलती थी जा मत, पैर जल जाएगा, क्योंकि वो इतना सा एक छोटे से ढक्कन में भी वो इतना एग्रेसिव था। सो नमिता, एक शेयर मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगी आपके पूरे अभी तक के जर्नी के लिए,
धीरे धीरे ए दुखियारो ख्वाब हकीकत बनते हैं. गौर फरमाइए. धीरे धीरे ए दुखियारो ख्वाब हकीकत बनते हैं. टाट ओढ़ के ख्वाब तो देखो तुम मखमल के बारे में. तुम मखमल के बारे में मतलब कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कोई भी सिचुएशंस हो, एटलीस्ट यू कैन थिंक एंड ड्रीम ऑफ हैविंग अ सिल्क silky life, even if you are not even having a simple blanket at home. And धीरे धीरे everything will be achieved in life. Heartiest congratulations. And I mean, I don't know, I am short of words to tell you ki what you've achieved, what you've gone through, it's commendable. Thank you. Difficult. आणि जेव्हा तू ती शब्द न शब्द बोलत होती ना, आम्ही ते अनुभवत होतो. तुझ्या एक्सप्रेशनमधनं, तुझ्या बोलण्यातनं, तुझ्या ओव्हरऑल सगळ्या गोष्टींमधनं ते यू नो आय हॅड दीज येस गूजबम्प्स ऑल्सो ऑन मी. So this is what your journey was about cancer, about starting Young Minds, about your entrepreneur launching. But what impact has cancer put in your life, or towards looking towards life, or outlook of your life? Has it changed? How much has it changed for you, for your family? Shruti, you know me so well. So in this context, and you know me since so many years, Ages. yeah. It's Decades been like ago. our college days, you know. Correct, Yeah. correct. It's this nostalgia. The moment I see you, it's always that kind of I thing. remember your your courtship period, your probably your boyfriend girlfriend period, and then your courtship, and then I can recollect every moment of that. Correct. So you have seen me then, you have seen me during I was not well, and you've seen me today. So there are three different set of personalities which have changed. Like, you know, initially you don't know, you know, things have not happened in your life, and you're like all You take over hale and life hearty. Yeah. as it comes easily. During cancer, तब तो एक था कि मुझे हमेशा लगता था कि भाई will I be the same someday like what I was before? And you know, believe me, that hospital nurse, this is lady, very senior nurse, she always used to tell me, तू ऐसी नहीं दिखेगी. You know, so I used to show her WhatsApp के photographs. तो क्योंकि वो कीमो चल रहा है, you are not in the best of your health or anything. तो मैं हमेशा दिखाती रहती थी कि देखो मैं ऐसी दिखती थी, you know. And she's like, मैंने उसको बोला यार tell me one thing कि मैं वापस ऐसे दिखूंगी? She said कभी नहीं. मैंने बोला यार ऐसे क्यों? उसने बोला, she said तुम इससे बहुत अच्छा दिखोगी. You know, look at that boost of energy this lady is giving me. वो बोले खुद पे जो इंसान भरोसा करता है वो 100% निखर के आता है, तो कुछ ज़्यादा ही निखर के आता है. And I never understood that actually when I was getting out of the cancer. जैसे मैं कैंसर से बाहर आने का जो मेरा प्रयास था, और कैंसर ने मुझे एक बात बहुत गहराई से उसने सिखाई है, और उसने मुझे you know बताई है कि जो आपके सुख में साथ देते हैं, जो आपके सुख के पलों में या सुख में साथ देते हैं, वो आपके रिश्ते होते हैं, और जो आपके दुख के समय में आपके साथ होते हैं वो फरिश्ते होते हैं. तो मैंने ज़िंदगी में फरिश्ते देखे हैं, वो मेरी ज़िंदगी में आज भी है. बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने साथ हमेशा अपने लोग होते हैं, जो शायद हम सेकेंडरी सेगमेंट में डाल देते हैं उन लोगों को, लेकिन वही अपने फैमिली मेम्बर्स, आर क्लोज नेट फैमिली मेम्बर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक बात मैंने गांठ बांध के सीख ली है यहाँ पे कि कैंसर ने मैं कैंसर को बोलती हूँ, कैंसर ने मुझे क्या दिया है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज कैंसर को बोलती हूँ थैंक यू कैंसर. If it would not have been a new Namita has evolved because of that. Would not have ever been born. A journey of an entrepreneur to my pageantry to being an athlete to being into so many segments, ये नहीं होता श्रुति. So cancer was a blessing in disguise for you. It was क्योंकि श्रुति कोई चीज़ अपने को बोल के नहीं होती है ना, अब सब चीज़ें हो जाती हैं, then you realize. तो I live my day one day at a time. बस मैं 10 साल के बाद ये करूंगी, 5 साल के बाद मैंने ये किया है, म्यूचुअल फंड्स में डाला, मैंने नहीं. I deal with things the way they are today, and I live in today because I know what my past is and I don't know what my future is. So I'm making the most of my today.
Absolutely correct. Thank you. This is a beautiful takeaway from today's episode for every one of us. Now, we have heard about your journey as an entrepreneur, as a cancer survivor. But हे सगळं हे पेजेंट्सचं काय चक्कर नेमकं? What is it? And you have got some lifetime achievement title. And I'm sure it's nothing to do with the beauty pageants. So can you just explain it a little to us? जेव्हा पण डोक्यावर माझा क्राऊन असतो, सो ऑब्व्हियसली तो वर्ड निघून जातो की आपण वी आर कंडिशन्ड, आवर ब्रेन इज कंडिशन टू दिस थिंग की क्राऊन मीन्स ब्युटी पेजंट. So exactly, that's the same thing which I came across the same thing. This happened way back in 2015. I just received a phone call. आणि मला सांगण्यात आलं फोन कॉलवर की यू आर सिलेक्टेड फॉर मिसेस इंडिया. इट वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल पेजेंट का कोई कॉल था. See, I had lost my hair and I was coming back to, getting back to normal and things like that. But I was not what I am today right now. तो 2015 ऑलमोस्ट अभी 10 साल होने का, और ये चीज़ों को तो वी आर इन ऑलमोस्ट इन 2024 नाउ. तो मुझे लगा किसी ने ऐसे प्रैंक कॉल किया है. दे सेड चेक योर ईमेल. मैंने कहा भाई इतने, आई चेक माई ईमेल और पता है को ईमेल के साथ आई हैड माई टिकट्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली. Okay. और उसमें था So your Santa had sent you already. हाँ शायद मैंने ना कोई वो फरिश्ता काइंड ऑफ. तो मैंने कहा कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया बीच में से, बिकॉज आई वॉजंट रियली प्रिपेयर फॉर एनीथिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ. ये बीच में से बिकॉज आई वॉज बिजी विद वॉट एवर दैट लिटिल एंटरप्रेन्योरियल थिंग विच आई वॉज कैरी फॉरवर्डिंग. तो वो सब कुछ ठीक था. जब मुझे ये ऐसा आया तो नेचुरली आई आस्क्ड माय हस्बैंड एंड कि भाई ये ऑनलाइन एंट्री बोल रहे, तो ये ऑनलाइन एंट्री तुमने दी? बोले नहीं मैंने नहीं दी. मेरा तो सवाल ही नहीं, क्योंकि मुझे कॉल आ रहा था. आई आस्क्ड माय siblings, I asked my parents. माझे आई बाबा म्हणे ते गॅसचं सिलेंडरचा नंबर ऑनलाईन लावण्याशिवाय आम्हाला ऑनलाईन काहीच येत नाही. सो आय एम लाईक, I was going to Delhi, right? As in, I had the ticket. I got to know it's a proper pageant and stuff like. Everything was set. सब कुछ ब्रैकेट में ठीक था. बट मेरी एंट्री किसने दी? वेरी इंपॉर्टेंट. कि एवी जा रहे हो पेजेंट में ऐसे कैसे. So I was very keen on knowing that, and when I got into the depths of the thing, then I got to know that the entry, which was like that online entry जो दी थी मेरी, that online entry was given by the nurse of the hospital where I was taking treatment. Wow. वो बोलते ना कि काही नाते सरनेम्स जो भी आहे ते आपण जन्माला येताना घेऊन येतो. पण आणि काही आपण इथे कमवतो. तर ते माझं कमवलेलं एक नात्यामधलं ते नातं होतं की आय रिअलाइज्ड की त्याच्यात असं म्हणतात की अ मॅन हॅज 3 names. वन दॅट हिज पेरेंट्स गिव्ह हिम, वन दॅट ही इनहेरिटेड्स फ्रॉम हिज फॅमिली, दॅट्स युअर सरनेम, अँड तिसरा जो तुम्ही कमवलेला असतो. आणि ते प्रत्येक जण नाही कमवत आयुष्यात. And exactly that happened. When I called up that sister, वो बोली यार कैंसर को एक चेहरा होना चाहिए. मैंने बोला ये क्या चीज़ हुई. I was thinking about something else. She said नहीं, वो बस मेरा दिल करता है कैंसर को एक चेहरा होना चाहिए. I said okay fine, चलेगा. Let me just go and see. I went. It was just a normal pageant, which had everything to do with beauty. वो कोई ऐसी पेजेंट नहीं थी जो मैंने बाद में जीती है. इट वॉज जस्ट एज वेरी नॉर्मल पेजेंट. मैं गई, उसमें से कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं. आई जस्ट गॉट अ वेरी टाइनी क्राउन. एक मैंने फोटो डाला जो देखो जयाप्रदा जी ने क्राउन किया था, वेरी टाइनी गोल्डन कलर के. इसमें जस्ट पोस्ट माई कीमो दिस थिंग एंड ऑल. तो आप सब लोगों ने बहुत सराहा था कि अरे कुछ नहीं, मिसेस इंडिया फोटोजेनिक मिला है, थोड़ा और कुछ बाद में कुछ और भी मिल सकता है, कुछ नहीं. तो ये हुआ 2015 में. देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन हांगकॉन्ग where they had a pageant, which was related to a social cause, but not really my cause, some kind of social cause when you are doing something. तो वो भी एक था. वहाँ I was representing my country. तब मुझे पहली बार ही पता चला, श्रुति, ये तो this is like मैं बताना चाहती हूँ सबको कि हमको क्या लगता है, अगर हम नासिक से हैं, करेक्ट? तो अगर नासिक से हम स्टेट लेवल में जाएंगे, स्टेट में से एक ही चुन के नेशनल में जाएगा, क्योंकि आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो. करेक्ट. और फिर नेशनल से चुन के एक ही इंसान या एक ही कैंडिडेट आगे जाएगा इंटरनेशनल के लिए, क्योंकि 10 लोग तो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते.
तब मुझे ये पता चले, तब से मुझे पता है, क्योंकि अब मुझे बहुत सारी चीजें कुछ दिखाई देती है जो होनी नहीं चाहिए एक्चुअली. So That is okay. Yeah, your smile says it all. But तो एवरी टॉपिक हैज अ स्यापा एंड कुछ स्यापे डिस्कस नहीं किए तो बेटर होता. तो ऐसे टॉपिक में तो रायता फैलता ही है ना कहीं ना कहीं. तो जब वहाँ हांगकांग पहुंची, क्योंकि जब वो छोटा वाला क्राउन जीता था, तब मैं वो जीत के बहुत खुश हुई थी. तो मैं मुंबई लैंड किया, मैं अंधेरी हॉस्पिटल गई और मैंने वो सिस्टर को बोला, अरे थैंक यू सो मच सिस्टर, आपकी वजह से मुझे आई गॉट दिस क्राउन. कुछ भी हो जाए, वो सिस्टर एक लेडी है, तो वो सिस्टर को वो क्या बोली होगी, ये बहुत छोटा है, तेरे को कुछ और बड़ा करना है, कैंसर को एक चेहरा होना चाहिए. मैंने बोला यार, ये एक ही डायलॉग बार बार क्यों चिपकाती है मुझे. चलो कोई नहीं, I made little light-hearted kind of a thing. I told her, okay. Then in 2015, when I was boarding my flight to Hong Kong, I called her, I'm going for a good cause. She said, okay, all the best. I won Mrs. International Worldwide Queen 2015 in Hong Kong, and when I was back, Nice. I was so glad, happy, thrilled, excited, all the emotions कि अपने देश में वापस आ रही हूँ. I did the same thing. पहुँच गई वापस उधर सिस्टर के यहाँ, और उसको मैंने वो क्राउन दिया, and I told her कि see, this is the big one, I've got. She said, no, कैंसर को एक चेहरा होना चाहिए. I'm like, okay, now this is done. तो what, श्रुति, तब मैंने डिसाइड किया था कि कुछ नहीं करूँगी. This is okay, this is enough. This is done enough. with it. हाँ. तो बस. And then you all got to know that 2017, I got Mrs. Global United 2017. I won it in the United States, and it was the thing for my country, for our country. You were born for that. Thank you. क्योंकि श्रुति, तब पता चला कि अपने देश का नाम आप दूसरे देश में, कितने बड़े कंट्री में, with 48 nationalities, यानी 48 अलग अलग कंट्रीज की कैंसर सर्वाइवर्स यहाँ आई थी. आपने मुझे पूछा ना अभी कि इफ इट इज नॉट अ ब्यूटी पेजेंट, देन व्हाट काइंड ऑफ अ पेजेंट. सो ग्लोबल यूनाइटेड फैमिली एक ऐसी फैमिली है, इट इज काइंड ऑफ अ पेजेंट्री which deals with cancer survivors. Oh. तो जो मैंने आपको पहले बोला कि दिल देखा जाता है, ना कि आपके आपने क्या कपड़े पहने, आप कैसे दिख रहे हो, तो सेकेंडरी सेगमेंट आ जाता है. सो वो एक वहाँ तक की जर्नी थी 2017 मिसेस ग्लोबल यूनाइटेड की. और आपका जो सेगमेंट में का लास्ट पार्ट था आपके क्वेश्चन में का, वो आपने शायद लाइफ टाइम क्वीन के बारे में पूछा. तो 2017 में जब मैं जब जा रही थी पेजेंट के लिए, जब मुंबई से आई वाज लीविंग फ्रॉम मुंबई, तो that same educational consultant, that senior man, came at the airport and wished me all the best. He gave me an envelope. एक न्यूज़पेपर को अगर आप हाफ फोल्ड कर दोगे, लीगल साइज के साइज का एक एनवेलप दिया. मुझे बोला, इफ यू विन यू ओपन इट, इफ यू लूज यू गिव इट बैक टू मी. मैंने बोला क्या आदमी है कि एयरपोर्ट पे केबीसी खेल रहे. कुछ नहीं, चलो, डजंट मैटर. आई जस्ट पिक्ड अप द एनवेलप, ऐसे पैर छुए. मैंने बोला, सर थैंक यू सो मच एंड आई एम गेटिंग लेट. मैं निकल गई बस वहाँ से. जब जा रही थी, देन जब वहाँ पहुँचने तक मुझे लग रहा था श्रुति कि आई शुड विन. बट जब वहाँ पहुँचने के बाद ऐसे ही सब जब जैसे हम आज बैठे हैं, वैसे ही उन लोगों का भी सेशन चल रहे थे. और 48 नेशनलिटीज़ की कैंसर सर्वाइवर्स आपके साथ है, 48 स्टोरीज आपके साथ थी. वी वर लिसनिंग टू एवरीवन. तो तब लगा कि भाई कोई भी जीते क्या फ़र्क पड़ता है, रीचिंग हियर इज़ एक्चुअली विनिंग. तो ये सब कुछ चल रहा था, सब कुछ हुआ, फाइनल क्वेश्चन हो गया, सब हो गया. देन हमारा 2017 का क्राउनिंग सेरेमनी हुआ. आई वाज वेयरिंग द सैश एंड द क्राउन एंड एवरीथिंग वाज जस्ट सो परफेक्ट. वो अब तो रोना आता ही है ना, क्योंकि वो तो दैट वाज सो क्लोज टू योर हार्ट. हाँ, वो तो था कि यार कहाँ थी मैं, इन सम हॉस्पिटल इन बॉम्बे टेकिंग ट्रीटमेंट एज अ कैंसर पेशेंट. उसमें से बाहर आई, ये सब एक दो ये पेशेंट्स क्या हुए, और यहाँ तक आई और यहाँ तक पहुँची. देन आई वॉज लुकिंग बैक, वो सब चीज़ें फ्लैशबैक में मेरे सामने ऐसे ऐसे जा रही थी कि कहाँ से इंसान शुरू करते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म तक आके पहुँचता है. सब कुछ ठीक था, सब कुछ ओके. आई रियलाइज वो एनवेलप तो मैं खोल सकती हूँ ना ऑफिशियली, क्योंकि उन्होंने बोला था अगर जीती तो खोल लेना एनवेलप. मैंने बोला यार अभी तो जीत गई हूँ, तो विल डू दैट. तो फिर
रूम में गई और एनवलप को, लाइक छोटे बच्चे को आप चॉकलेट देते हो, अगर अभी आपने मुझे अगर एक चॉकलेट दिया तो मैं कितने इससे खोल दूंगी फटाक से, तो वैसे मैंने वो एनवलप एकदम जल्दी से पूछा, ऐसे खोला, और वो मेरे हाथ में जैसे था वो हाथ में वैसे ही रहा, और मैं बहुत ज़्यादा रोई। मेरे माई हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग ऐसे ऐसे, क्योंकि उस, आपको क्या लगता है वो एनवलप में क्या होगा? Maybe some letter, or I don't know. ओके, बिगर देन लेटर क्या हो सकता है? कोई फोटो कुछ दिया होगा उन्होंने ओके, शायद। तो मुझे भी यही लगा था श्रुति, क्योंकि शायद बीइंग फ्रेंड्स हमने सब सेम सोच सकते हैं, तो मैंने भी यही ऐसे सोचा कि वही कुछ होगा। वो एनवलप में अपने देश का, भारत का, खादी का राष्ट्रध्वज तिरंगा था, ओह वाओ। और वो पूरा मेरे सिर के ऊपर लेके, प्रोटोकॉल होता है अपने देश के झंडे को, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं भी जा रहे हो तो आपके सिर के ऊपर उसको लेके जाना है। ये भी चीज़ें काफ़ी मैंने सीखी है, तो उसमें आई रियलाइज कि वो आई वेंट फॉर द प्रेस कॉन, और वहाँ जाके मेरी पेजेंट डायरेक्टर मिसेस हॉगर ने कहा, नमिता जस्ट टर्न। मैंने बोला यार मेरे से गलती हो गई 100%, क्योंकि कुछ ना कुछ सियापा हो सकता है, कुछ तो किया होगा मैंने ऐसे ही टर्न लिया, और मैं सामने देख रही हूँ कि 48 कंट्रीज़ के झंडे लगे हैं, और वो 48 कंट्रीज़ के फ्लैग्स के बीच में इंडिया का फ्लैग है, और सबसे ऊंचा उन्होंने लहराया है, क्योंकि बिकॉज आई वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिप्रेजेंट माय कंट्री एज अ कैंसर सर्वाइवर इन यूनाइटेड स्टेट्स टू विन दिस पेजेंट। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा रो के, मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। उनको लग रहा था ये इतना क्यों रो रही है, क्योंकि स्कूल में कुछ हादसा हुआ था, मैं आपको बताऊंगी, कि उसकी वजह से वो एक चीज़ थी मेरे दिल में, कि छोटेपन में जो चीज़ें होती है ना, वो आपको यहाँ चुभ जाती है। तो मुझे परेड से निकाल दिया था 8th स्टैंडर्ड में, कहा था कि आपका यूनिफॉर्म इनअप्रोप्रिएट है। तो श्रुति, वी कम फ्रॉम सिंपल फैमिलीज, तो हमारे वो ऐसे टर्न कर करके हम जो स्कर्ट्स की लेंथ बढ़ाते थे, दैट काइंड ऑफ फैमिली। आई रियलाइज्ड that something also, such things are happening to you, but still you are making the most of it when you're coming to this given point of time. इसलिए वो दिल में भर भर के आ रहा था, कि तब रियलाइज़ हुआ कि अगर अपनी वजह से अपने देश का फ्लैग अगर 7 समुंदर पार कोई लहराता है, और इतना रिस्पेक्ट हमारी वजह से वो वहाँ तक उतना मिल रहा है, आर कंट्रीज गेटिंग रिकग्निशन, दैट मीन्स, वही मुझे याद आया कि वहाँ समझता है कि भारतीय होने की आन बान और शान क्या होती है। ये सब हुआ 2017 में, आप सब लोग मिले मुझे, मैं यहाँ नासिक आई, सब हुआ, सब तामझाम चल रहा था, फोटोग्राफी वो सब चल रहा था। और जैसे मैंने ये सब चीज़ें मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में बता रही हूँ, लेकिन इसके पीछे जो लेडी है वो मेरी नर्स, क्योंकि उन्होंने तो वो डाला था मेरे जहन में कि आप यू गेट इनटू दिस। और जब मैं उनको फ़ोन करना चाहा, जब मैं जीती, तो मैंने उनको, फर्स्ट थिंग वाज लाइक आई शुड स्पीक टू हर, शी डिड नॉट आंसर माय कॉल। मतलब कोई नहीं फर्क पड़ता है, व्हाट्सएप भी नहीं दिखा मेरा, कुछ नहीं, चलो कोई नहीं करते हुए पूरा 1.5 महीना प्रोटोकॉल का खत्म हुआ। यूएस में मुझे 1.5 महीना कंपल्सरी रहना था, वो 1.5 महीना मैंने कंप्लीट किया 2017 का। व्हेन आई केम बैक, मैंने सोचा सेम फॉलो करूँ, वो पहले जैसे मैंने फॉलो किया था कि जाओ बस ये करो। मैं गई वहाँ पे, और वहाँ पे जैसे पहुँचते से ही मैंने सोचा कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तो मेरे हस्बैंड बोले ओके विल गो। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock। सो वो बोले कि ज़रा टाइम वाइम देखो। मैंने बोला नहीं, आई जस्ट वॉन्टेड टू जस्ट गो एंड सी हर। तो बोले हाँ ठीक है। तो उन्होंने नासिक के डायरेक्शन में गाड़ी घुमाई, तो मैंने उनको कहा नो वी आर गोइंग टू द हॉस्पिटल, एंड देन ही सेड द सिस्टर इज नो मोर। ये चीज़ें ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि आपको लगता है एक इंसान ने एक टाइम पे आपका फ़ोन नहीं उठाया, तो आपको लगता है अरे कैसा है, मैंने इतना सब कुछ जीता है, फ़ोन नहीं उठाया, ये नहीं। तो श्रुति, मुझे वो टाइम पे दो चार ही बारी लगा था कि उन्होंने शायद तो फ़ोन घुमा दिया है, कुछ हुआ है। सो दैट इज़ दैट वन थिंग विच वी केम टू, तो वो इम्पॉर्टेंट था। एंड 2018 जब मैं वापस गई, तब दे अनाउंस्ड मी एज मिसेस ग्लोबल यूनाइटेड एलीट लाइफ टाइम क्वीन, क्योंकि when they saw the services which have been offered to cancer patients in India through me, they said we want such people to be with us forever. तुला माहिती आहे, मी जितके वर्ष जिवंत आहे, मला अमेरिकेची पेड ट्रिप असते ह्यांच्याकडनं, मला प्रोटोकॉल आहे, खूप मोठ्या गोष्टी साईन केलेल्या आहेत त्यांच्यासाठी, आणि हे सगळं काम दरवर्षी जुलै महिन्यामध्ये होतं. सो इट इज मोर ओवर युनायटेड स्टेट्स. आता ते सगळीकडे बघतात की वेरेवर लाईफ टाईम क्वीन्स कॅन गो अँड स्पीक अबाउट थिंग्स लाईक दॅट रिलेटेड टू चाइल्डहुड कॅन्सर रिसर्च. आम्ही छोट्या मुलांबरोबर काम करतो, अँड दॅट्स व्हॉट
दॅट टायटल जे तू आत्ता विचारलेलं Hmm. क्वेश्चन मध्ये, दॅट्स व्हॉट दॅट टायटल इज. ऑल अबाउट. येस. सो मच डीप इन टू इट. आणि आजकाल पेजेस म्हणजे पीपल त्याचं अँगलच चेंज आहे बघायचं. You are into fashion industry, so you know it very well. ओके. खूप सिरियस गोष्टी डिस्कस झाल्या. आता थोडंसं आपण नॉर्मल मूडमध्ये येऊया. Yeah. How does social media, or what kind of motivational stories and messages would you like to give on social media, like Facebook, Insta? Like what I give to people. What you would like to give? Okay. Because, see, I feel that live and let live. Simple funda of life. Absolutely. Why poke nose in every other person's whatever thing they're doing? Nobody is Last answerable episode to also you. we spoke about this, but people like to talk about it. Yeah. जब आप सक्सेस हासिल करते हो ना, तो दिस क्रिटिसिज्म या पोकिंग नोज, दिस कम्स एज अ बाय प्रोडक्ट. हाँ, लेकिन श्रुति, हमको स्कूल में क्या पढ़ाया था कि जिस झाड़ पे फल है लोग उसी को पत्थर मारते हैं. तो अभी थोड़े बहुत फल कमा लिए होंगे तो पत्थर मारते हैं लोग, उसमें क्या बात है. अभी बदनाम भी वही होता है जिसका कोई नाम होता है. सही है. कोई तो बात बस नहीं. लिव एंड लेट लिव इज द सिंपल मंत्र आई एम गिविंग. लिव्ह अँड लेट लिव्ह. करेक्ट. पण आजकाल तसं बघायला गेलं तर बरंच सिनेरिओ चेंज झालंय सोसायटी वाईज. आधी लाईक आय कम फ्रॉम अ मारवाडी फॅमिली, तर त्याच्यात खूप वेगळं होतं ऍस्पेक्ट बघायचं. किंवा यू टॉक अबाउट महाराष्ट्रीयन फॅमिली, द टिपिकलनेस, द ऑर्थोडॉक्सनेस हॅज गॉन अवे टू एन एक्सटेंट. इट हॅज. बट आपले पाची बोथ सेम नाही, सो थिंग्स आर गोइंग टू बी देअर इन द Yeah. मार्केट अँड इट्स गोइंग टू बी देअर लाईक दॅट ओनली. आणि नमिता, ही तुझी पूर्ण जर्नी बघताना लोक वेगवेगळे गेम्स खेळतात. कॅन्सर सर्वायव्हर कदाचित कॅरम खेळतील, कदाचित टेनिस खेळतील, कदाचित काय खेळतील. आय मीन पॉवर लिफ्टिंग हे कुठून आलं तुझ्याकडे डोक्यात सुद्धा? आय मीन हाऊ डिड यू इवन थिंक अबाउट दॅट? हॅज इट चेंज युअर आउटलुक टू लुक टुवर्ड्स लाईफ? व्हॉट इज इट दॅट इन्स्पायर्स यू टू गेट इन टू इट? See, you know me as a motivational speaker. मी आता जस्ट दापोलीला आय कम्प्लिटेड माय 600th मोटिवेशनल टॉक सेशन. म्हणजे 23,890 लोकांपर्यंत मी पोहोचली आहे. टू बी प्रिसाइज. म्हणजे तुमच्या ह्याच्याने अजून खूप लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे, ते आपण नंतर ऍड करूयात. पण आय हॅव रिअलाइज्ड ह्याच्यामध्ये, ह्या जर्नीमध्ये, की आय यूज टू ड्रेस अप. म्हणजे आता आय हॅव ड्रेस्ड अप, राईट. आय वेअर माय क्राऊन अँड आय स्पीक टू द ऑडियन्स. तर मला असे पण लोक भेटलेत, म्हणजे आय मेट जेंटलमॅन, आणि ते मला भेटले. मला म्हणे की अरे क्रिटिसिझम. हा, म्हणजे निंदकाचे घर असावे शेजारी. तो असे निंदक सापडले मला. म्हणजे आय थँक्स टू हिम, दॅट बिकॉज ऑफ हिम आय एम हिअर, बिकॉज ऑफ दॅट सेगमेंट आय एम इन टू पॉवर लिफ्टिंग. त्यांनी मला सांगितलं की ठीक आहे, हे क्राऊन घालायचं, तयार बियार व्हायचं, टॉक सेशन द्यायचं, कॅन्सर पेशंटसाठी काम करायचं, सब कुछ ठीक है भाई, तुझ में ताकत कितनी है? ताकत का ऐसे कैसे पूछ लिया? तो आई डिसाइडेड दैट आई यूज टू वर्क आउट, थोडं बहुत जिमिंग एंड ऑल आई यूज टू डू. बट मला असं वाटायचं की मे बी आय शुड गेट इन टू सम काइंड ऑफ स्पोर्ट. आय वॉज व्हेरी, जिथे जास्त सगळीकडनं, म्हणजे इफ यू गो टू द जिम, व्हॉट डू यू प्रिफर डुईंग? व्हॉट, कार्डिओ और वेट्स? I don't like to go to gyms only. I'm a yoga person. Great. But I'm right now doing TRX that I'm enjoying. Okay. So in general, मी जेव्हा पण जिमला जायचे, इट वॉज अ वुमेन्स जिम, आणि एवरीबडी यूज टू हिट द कार्डियो सेक्शन एंड नोबडी यूज टू गो टुवर्ड्स द वेट्स. तो वेट्स तो खाली वैसे बैठे रहते थे, वो डंबल सोचता था हाय मुझे कौन उठाएगा. तो मैंने सोचा कि चलो ये भी करके देखते. ग्रेजुअली व्हेन आई गॉट इनटू द सेगमेंट, देन आई रियलाइज्ड कि ऐसा कुछ तो गेम होगा ना कि जो वेट से रिलेटेड है. तो समवन टोल्ड मी दैट दिस इज कॉल्ड एज वेट लिफ्टिंग. मैंने ये तो वेट लिफ्टिंग तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि उसको तो सब गेम के लिए देयर इज लॉट ऑफ ट्रेनिंग विच इज रिक्वायर्ड. तो हाँ, तो वेट लिफ्टिंग के लिए मुझे इमीडिएट कोई गुरु नहीं इमीडिएटली मिल रहे थे, कोच. एंड पावर लिफ्टिंग के लिए आई फाउंड द कंसर्न गुरु, एन एक्सीलेंट पर्सन हु स्टार्टेड टेकिंग माई क्लासेस फॉर पावर लिफ्टिंग. मैंने देखा कि अगर मेरा बॉडी वेट 50 kgs है, एंड इफ आई कैन लिफ्ट 3 times यानी 150 kgs,
So that makes a record, right? That Makes gives a you a record. record. Yeah. तो एक तो मेरे एज ग्रुप में कोई नहीं, यहाँ आप, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, पावर लिफ्टिंग में कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, नो कैंसर सर्वाइवर पावर लिफ्टर, ऐसे कुछ यानी उन लोगों के लिए कुछ अलग सा बना नहीं है. आप जनरल यानी आई विल बी कंटेस्टिंग विद रेगुलर एथलीट्स. हाँ, मेरे एज के जो है, मेरे वेट कैटेगरी और एज कैटेगरी में जो बैठ रहे हैं, मैं उनके साथ कंटेस्ट करूंगी, compete करूंगी. तो बस दैट्स हाउ इट वाज एंड थिंग्स हैपेंड. मैंने जब सोशल मीडिया की बात आती है यहाँ पे, व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, ठीक है, तब मैंने सोचा कि आज ना मैंने अच्छा किया है, डेडलिफ्ट बहुत अच्छा लिया है मैंने, मैं आज वीडियो डालती हूँ. देन आई रियलाइज कि नको डिस्ट्रिक्ट हो जाने दो. डिस्ट्रिक्ट गोल्ड लिया, बहुत टेम्प्ट हुई. मैंने सोचा डिस्ट्रिक्ट में अगर पहले ही बोल दूंगी तो स्टेट में शायद कॉन्सेंट्रेट ना कर पाऊँ, इसलिए स्टेट भी क्लियर कर लिया, स्टेट गोल्ड मिला. देन आई क्लियर व्हेन आई क्लियर स्टेट, दैट टाइम आई वाज लाइक ओके फाइन, आई डू दिस एंड आज ही डाल देती हूँ. देन आई रियलाइज कि स्टेट का अगर मुझे कुछ हो गया क्योंकि नहीं कर पाई नेशनल, सो द पीपल, बिकॉज वन थिंग आई हैव लर्नड इज मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचाए. करेक्ट. तो मैंने सोचा भाई अभी तो मेहनत करने का टाइम है, ये ऑडियंस पोल और ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट वर्कआउट. एंड देन इन 2019 at Alcatraz Stadium in Delhi, I won my first national championship in powerlifting and became the first national champion in powerlifting. तो उनको पहला फ़ोन किया, मैंने बोला थैंक यू सो मच सर, जस्ट चेक द पोस्ट नाउ, अभी देख लीजिए कि पोस्ट क्या है. तो and he said, I knew that someday, somewhere, you will shine. Apart from your own segment, what you are doing, एक कुछ अलग नमिता भी कर सकती है. That's the only reason. That's why I pushed you. हाँ, this is बेटा, मैंने आपको ऐसे purposely ये किया था, deliberately आपको बोला था. मैं सोचा था कि अगर करने वाले इंसान होगा तो 100% करेगा, और अगर कोई मुझे उतना कोई वो मानते ही नहीं है तो वो नहीं करेंगे. तो you took this thing and I'm happy and बस वही चल रहा है. So 2 times championship ली है अभी तक in powerlifting with my consecutive 2022 and 2023 surgeries की वजह से मुझे बोला है कि heavy lifting अभी मत करो, तो थोड़ा break है. Time please. Time please is only word for both of us. So we come back with a very interesting game, Namita, for you. It's a rapid fire round. I'll be giving you a question. Immediately within seconds, you have to give answers to it, and not very precise answers, maybe 1 word or 3 words, whatever I've asked you for. And it's a rapid fire round, so immediately you have to answer. Okay. And it has to be precise. Okay? So the first rapid fire round comes to you. The first question comes to you. 3 things that you would always do before going for a motivational talk. Or probably 3 things that you will never avoid before going to a motivational talk. Okay. I'm spiritual, so puja, 1. Second is check my mic when I'm there on the stage. And thirdly, I will always touch the stage first. Uska ye karungi, Wow, then I'll, you got that right. Okay, next. 3 must in your travel bag. You just said in your interview you could travel a lot. So 3 must that you will never miss in your travel bag. Sunscreen, my medications, Right. and I have a dabba of dry fruits. That's it. Wow. 3 things. Atta hai ka? Oh, I'll take it for a while. Okay, so any 3 words that comes to your mind after listening to this word mic? Mic. Passion, perfection, and presentation. Okay. Nice. Passion, perfection, presentation. You are 3 P's. 3 P's. Okay. Education. A must. Right to everyone, and that's what I can say. Okay. Now here you have to give only 1 word. After listening to travel, what comes to your mind? Travel, wanderlust. I love that. I love traveling. Health. Everything. 3 things that you hate the most when people do at events. Try to answer in 1 word. Selfies. So no selfies today. No, not really, because when you're in an audience of like
800,000 people and everybody wants to come and cling to you and get the selfie done. I will give it to everyone, but there has to be some pattern which is followed. Simple. Okay. 3 things I said. 3 things. Okay. That is one is of course selfies. Can I have your number, please? This question. and the third one, 100% would be where can I meet you? Oh my God. yeah. I'm sure these questions none of us would like to answer or probably entertain as well. So this was a beautiful round and a beautiful episode with you. We had a blast. We had lots of takeaways, lots of things to learn, lots of probably there's so much to learn from you, Namita, that audience would really look forward to it. And can we have the hamper for my... Yay! Thank you so much. जब ये खुलेगा हमको याद कर लेना. जरूर. तुम्हारे बगैर तो खुलेगा नहीं. क्या बुला बात है. लेंगे.